for date. Okay. So in today's class, we will deal with the topic which is called logarithm. Okay, in today's class, we will deal with a topic which is called logarithm. Now, first of all, let us try to understand what is this. What is this logarithm? Logarithm or log is just another way of representing the numbers. फॉर एग्जाम्पल जब हम लोगों ने एक्सपोनेंट्स पढ़ा था तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था 100 कैन बी रिटन एज 10 रेज टू द पावर 2 10 रेज टू द पावर 2 को अपन 100 लिखते हैं या जैसे मान लो यहाँ पे 100 है so this is taking lot of space so I have written it as 10 raised to the power 2 यहाँ नहीं समझ में आता है मान लो 1 is followed by say 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 zeros so I will write it as 10 raised to the power 14 fine khatam fine khatam so this is why the concept of exponents came this is why the concept of exponents came. Now, after the concept of exponents, there was another thing. अब प्रॉब्लम क्या होती थी बेटा कि जब हम किसी बड़े लार्ज नंबर को अगर आप ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो ठीक है अगर आप किसी बड़े लार्ज नंबर को ग्राफ पे रिप्रेजेंट कर रहे हो दैट केस देयर यूज्ड टू बी प्रॉब्लम सोचो अगर आपको x एक्सिस पे या y एक्सिस पे 10 रेज टू द पावर दिस 1 फॉलोड बाय 14 जीरोस को रिप्रेजेंट करना हो तो Can you imagine how long your graph will be? क्या आप उस ग्राफ पेपर को इस 14 इंच स्क्रीन के लैपटॉप पे रिप्रेजेंट कर सकते हो कभी नहीं कर सकते आप उसको मैग्नीफाई करोगे तो योर मैग्निफिकेशन विल एक्सटेंड अप टू 1000 टाइम्स so you won't be able to represent this number on a graph paper so इस टाइप की प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को काउंटर करने के लिए एक कंसेप्ट आया दैट कंसेप्ट वाज कॉल्ड लॉगरिथम दैट कंसेप्ट वाज कॉल्ड लॉगरिथम अभी जब अपन प्रॉपर्टीज पढ़ लेंगे देन आई विल टेल यू व्हाट इज द प्रैक्टिकल यूज ऑफ दिस लॉगरिथम क्यों हमने इस लॉगरिथम को पढ़ा पूरी की पूरी रामायण खत्म होने के बाद मैं आपको बताऊंगा व्हाई व्हाट वाज द नीड ऑफ दिस रामायण अभी बस इतना समझो कि दिस वाज बिकॉज देयर वेयर सम प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज उन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को एडजस्ट करने के लिए उन प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज को टेक केयर करने के लिए वी केम विद द कंसेप्ट ऑफ दिस लॉगरिथम वी केम विद द कंसेप्ट ऑफ लॉगरिथम so now I want to how the log is defined just let us see how log is defined if 10 raised to the power 2 is equal to 100 so I will write log of 100 to the base 10 is equal to 2 log of 100 to the base 10 is equal to 2 just wait a minute I'm getting a call from one of the student I guess he is not able to attend. So So I was telling you that if 10 raised to the power 2 is equal to 100, then what I will write, log of 100 to the base 10 is equal to 2. Log of 100 to the base 10 is equal to 2. And it is written and it is read as log of 100 to the base 10 is equal to 2. Agar apan 10 raised to the power 3 is equal to 1000, then I will say log of 1000 to the base 10 is equal to 3. And this beautiful concept was given by John Napier in 17th century. This beautiful concept was given by John Napier in 17th century. So log is defined as log is just another way of representation of numbers. Okay? If 10 raised to the power 2 is equal to 100, then we read it as log of 100 to the base 10 is equal to 2 और log of 1000 to the base 10 is equal to 3. अब मेरे को एक बात बताओ 2 raised to the power 3 is equal to 8 ऐसा भी होता है so from here I can read log of 8 to the base 2 is equal to 3 log of 8 to the base 2 is equal to 3 this also I can do this also I can say so the
द बेस कैन बी, बेस हमारा 2 भी हो सकता है, बेस मेरा 10 भी हो सकता है, बेस कैन बी एनीथिंग. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हियर इज, यहाँ पे जैसे हम 10 बेस की बात कर रहे थे, तो बेस मेरा कुछ भी हो सकता है. देयर आर टू टाइप ऑफ बेसिस. एक होता है कॉमन बेस, जो कि अपन 10 के बेस की बात करते हैं. एक होता है log to the base e. Now this e is an irrational number log to the base e. फिलहाल आप बस इतना जानिए कि जैसे 10 बेस होता है वैसा ही एक और बेस होता है, that is base e. Bases can be anything. This 2 can also be a base. This 10 can also be a base. अगर मैं इस तरीके से लिखूं 3 raised to the power 3 is 27. So in that case this 3 will also become a base. So base can be anything, but we are having two bases. एक होता है common base या एक होता है natural base, that is log to the base 10, and एक होता है other bases जिसमें आपका e आ गया 2 3 4, जो भी आपको लिखना हो, जिसका भी आपको बेस बनाना हो बना सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है वहां पे. ठीक है. अब एक चीज और यहाँ पे एक बात ध्यान रखना, अनलेस एंड अदरवाइज स्टेटेड, अगर कहीं पे log x लिखा हुआ है, what I'm trying to say here is unless and otherwise stated, if somewhere it is written as log x, then it will be log of x to the base 10. यहाँ पे जो 10 है ये understood रहेगा, it will be hidden, especially nobody will write 10 here, it will be hidden. तो अगर कहीं पे log x लिखा हुआ है तो that means it will be आपका base 10. ठीक है, आगे बढ़े. कोई कुछ पूछ रहा था? नहीं, कोई कुछ नहीं पूछ रहा. ठीक है, चलो. So just as I told you, 3 raised to the power 2 is equal to 9. So log of 9 to the base 3 is equal to 2. ठीक है. 3 raised to the power 3 equal to 27. So log of 27 to the base 3 is equal to 3. अब मैं आप लोगों को जो बताने जा रहा हूँ, again that thing is very interesting. Now I will tell you about the graph of logarithm. log का ग्राफ कैसे बनता है. ठीक है, देखो. जनरल रिप्रेजेंटेशन होता है if a raised to the power x is equal to n, so log of n to the base a is equal to x. Here a is greater than 0. A is greater than 0. Log of n to the base x, log of n to the base a is equal to x, and x is also yeah, this is also greater. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. अब हम बात करेंगे लॉगरिथम के ग्राफ की. देखो हमने क्या बात किया था, हमने बोला था इफ a raised to the power x, यहाँ पे लिखता हूं, if a raised to the power x is equal to n, so log of n to the base a is equal to x. Now there can be 2-3 conditions. पहली कंडीशन वो हो सकती है जब ये जो मेरा x a है, जब ये जो मेरा a है, this a is greater than 1. ठीक है, जब ये मेरा a है, this a is greater than 1. In that case, wait, somebody is asking something. Here I have just written if a raised to the power x is equal to n, then log of n to the base a is equal to x. ये जो है मेरा log को बोलने का तरीका होता है. अब यहाँ पे बेटा ये जो a है, this a can be greater than 1, this a can be between 1 and 0. So for all these different cases we will have different shape of the graph. That is what I am going to explain here. देखो, for example, if a is greater than 1, अगर मेरा a जो है वो 1 से बड़ा है, in that case log of x to the base a will be less than 0. उस केस में log of x to the base a will be less than 0 if my x is between 0 and 1. What I mean to say here is, देखो समझने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं. 10 raised to the power, say 10 raised to the power, क्या बोलूँ मैं, 1 upon 100. Okay.
देखो इसको अपन कैसे समझेंगे कि हाउ इट विल बी लेस देन 1, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं. लेट मी ट्राई टू गिव यू सम प्रैक्टिकल एग्जांपल. अगर मान लो हियर वी आर हैविंग 1 upon 100, तो आई विल राइट इट एज 1 upon 100 can be written as 10 raised to the power minus 2. So what I will say here, log of 1 upon 100 to the base 10 is equal to minus 2. Log, log of 1 upon 100 to the base 10 will be equal to minus 2. So, same thing is said here. अगर मेरे पास Sir, हाँ बोलिए. sir, but in previous slide we saw that x should be greater than 0. X should be greater than 0. See, x should be greater than 0. फाइन. तो यहाँ पे जो मैंने x लिया है, यहाँ पे मैंने x कौन सा, यहाँ पे कौन सा x मेरा आपका, आप बोल रहे हो कि इट इज नॉट ग्रेटर देन 0. Sir, -2. -2. Okay, just don't get confused here. Just don't get confused. Okay, I will explain you from this scratch again. यहाँ पे कंफ्यूज होने की बात नहीं है. देखो अगर a मेरा ग्रेटर देन 1 है, ठीक है, इफ a इज ग्रेटर देन 1, हमने log की क्या डेफिनेशन बनाई थी? लेट अस सी व्हाट वाज द डेफिनेशन ऑफ log फ्रॉम हियर. log of, just wait, huh? अपन ने जो डेफिनेशन पढ़ी थी वो अपन ने क्या पढ़ी थी? a raised to the power x is equal to n, so log of n to the base a will be equal to x. Now here I did a mistake in the previous slide. This a and n, they should be greater than 0. I'm not talking x की value कुछ भी हो सकती है. X की value can be negative also. It was my mistake in the previous slide. Here a and n, a comma n should be greater than 0. a comma n should be greater than 0. ठीक है. अब बात करते हैं यहाँ पे if a is greater than 1. अब a अगर मेरा 1 से ज्यादा है and log of a to the n to the base a is less than 0, उस केस में क्या होगा? अगर मान लो a मेरा 1 से ज्यादा, बेसिकली आई वांट टू प्लॉट द ग्राफ. मेरा पर्पस क्या है? मेरे को ग्राफ प्लॉट करना है एंड आई एम बीन गिवन, ये जो a है ये मेरा 1 से ज्यादा दिया हुआ है मेरे को. तो अब मैं इसको कैसे कैसे करूंगा? दैट आई हैव टू सी एंड आई हैव टू प्लॉट द ग्राफ. ठीक है. अब देखो a रेज टू द पावर a की वैल्यू, अगर अपन एक काम करते हैं, a की वैल्यू फॉर द टाइम भी हम 10 ले लेते हैं. ठीक है. और n की वैल्यू जो है, n की वैल्यू अपन वी विल स्टार्ट टेकिंग फ्रॉम 10. 1 से स्टार्ट करते हैं n की वैल्यू लेना, और n की वैल्यू अपन देखते जाते हैं क्या क्या होती है. अगर मैं 10 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 1 बोलता हूं, सो हियर x विल बी इक्वल टू 0. बोलो यस. यस सर. ठीक है. Yes, अगर sir. अगर मैं 10 रेज टू द पावर x को 100 बोलता हूं, सो दिस विल गिव मी x इज इक्वल टू 2. ठीक है. अगर मैं 10 रेज टू द पावर x को 1 अपॉन 10 बोलता हूं, सो इट विल गिव मी x इज इक्वल टू -1. -1. ठीक है. Yes. So I am getting different values of x for my different values. For different values of this x, I'm get for different values of this x. जैसे x की वैल्यू अगर 1/10 है, फिर x की वैल्यू अगर 100 है, फिर x की वैल्यू अगर 1000 है. So correspondingly, I'm getting different values of this y coordinate. ये जो वैल्यू है यहाँ पे 0, -1, 2, these will be my y coordinate here. आप लोग कंफ्यूज इसलिए हो रहे हो क्योंकि यहाँ पे भी x है, यहाँ पे अपन x कोऑर्डिनेट को इस तरीके से लिख रहे हैं, इसलिए मे बी देयर वुड बी सम कंफ्यूजन हियर.
So we are getting different values of my y coordinate for different values of my x. So अगर x की वैल्यू मान लो, अगर x की वैल्यू 100 है, ठीक है, if the value of x is 100, then my then my corresponding y coordinate is 2. If the value of x is 1000, my corresponding y coordinate is 3. If my value of x is 1/10, my corresponding y coordinate is -1. इन सारे पॉइंट्स को जब आप प्लॉट करोगे तो इस टाइप का आपको एक कर्व मिलेगा. यू विल गेट ए कर्व लाइक दिस. So this is called plot of y equal to log x to the base a for a greater than 1. अगर a जो है मेरा 1 से बड़ा है तो y equal to log x का प्लॉट कुछ इस टाइप से होगा. ठीक है, अब हम बात करते हैं अगर a जो है मेरा वो लेस देन, अगर a जो है मेरा वो 0 से 1 के बीच में, a लेस देन 1 तो कभी हो ही नहीं सकता है. अगर a मेरा 0 और 1 के बीच में है, in that case my graph will be like this. तो हमने जो ग्राफ पढ़ा, हमने दो टाइप का ग्राफ पढ़ा. If a is greater than 1, then my graph will be like this. If a is less than 1, then my graph will be like this. ठीक है, ग्राफ अभी तो आपको इतना जरूरी नहीं लगेगा, बट लेटर ऑन डेफिनेटली यू विल फाइंड इट्स यूज समवेयर. प्रैक्टिकल यूज आपको इस चीज का जरूर पड़ेगा. अब आधी रामायण हो गई. अब आपको मैं बताता हूं कि इस रामायण की जरूरत पड़ी क्यों थी. Why this Ramayana was needed? Now I will explain you. Suppose there is a place in Pacific Ocean that is called place A. ठीक है, पैसिफिक ओशन में कोई प्लेस है that is called place A. उसके बाद आर्कटिक ओशन में कोई प्लेस है that is called place B. और हमारे नेबर पाकिस्तान में कोई प्लेस है that is called place C. ठीक है, अब इस प्लेस ए पे अनफॉर्चुनेटली आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड बट आई हैव टू यूज, इस प्लेस पे कोई अर्थक्वेक आया. इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द रिक्टर स्केल वाज 7. इस प्लेस बी पे कोई अर्थक्वेक आया, इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द रिक्टर स्केल वाज 5. एंड इस प्लेस सी पे एक कोई अर्थक्वेक आया, इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द रिक्टर स्केल वाज से 3. ठीक है, तो हमारे पास 3 प्लेसेस हैं, एक प्लेस ए, एक प्लेस बी और एक प्लेस सी. प्लेस ए पे जो अर्थक्वेक आया, इट्स मैग्नीट्यूड ऑन द रिक्टर स्केल वाज 7. प्लेस बी पे जो अर्थक्वेक आया, इट्स मैग्नीट्यूड वाज 5. एंड प्लेस सी पे जो अर्थक्वेक आया, इट्स मैग्नीट्यूड वाज 3. अब देखो, समझने की कोशिश करो व्हाई दिस थिंग वाज नीडेड. अब देखो, रिक्टर स्केल आपको पता होगा कि दिस रिक्टर स्केल इज ए स्केल बेस्ड ऑन 10. ये जो है इट इज ए लॉगरिथमिक स्केल जिसका बेस होता है 10. तो अगर मैं इस 7 वाले अर्थक्वेक की बात करूं, सो दिस x विल बी इक्वल टू, आई मीन अगर मैं इस मैग्नीट्यूड को m1 बोलता हूं, ए अर्थक्वेक पे मतलब प्लेस ए पे जो अर्थक्वेक आया उसको अगर मैं m1 बोलता हूं, सो माय m1 विल बी इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 7. माय m2 जो कि प्लेस बी का अर्थक्वेक है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 5. एंड माय m3 जो कि प्लेस 3 का अर्थक्वेक है, दैट इज इक्वल टू 10 रेज़ टू द पावर 3. नाउ इससे आप डायरेक्टली यू कैन कंपेयर दैट मैग्नीट्यूड ऑफ m2 was 100 times more than magnitude of m3. m2 was 100 into एक्सपोनेंट में कंपैरिजन करने के लिए. हाँ, एक I'm telling you, m2 was 100 times of m3. m1 was 10 raised to the power 4 times of m3. So in order to compare large numbers in form of in order to compare large numbers or in order to plot large numbers, we use this concept of logarithm. जब large scale population की बात होती है, वहां पे this concept is used. This concept is very much used in economics. जहां पे लार्ज स्केल चीजों की बात होती है, अब आप अगर 1 करोड़ 23 लाख
सॉरी 123 करोड़ जनता की अगर आप बात करते हैं, ऑल्दो वी आर 130, अगर आप 130 करोड़ जनता की बात करते हो तो देयर यू विल यूज दिस लॉगरिथमिक स्केल. There you will use this logarithmic scale. Maybe you will increase the base. You will not keep the base as 10, you will keep the base as something else. There you will use this logarithmic scale. This is where this concept is used. तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा, अभी तक हम लोगों ने 3 चीजें पढ़ी बेटा. फर्स्ट, पहली चीज जो हम लोगों ने पढ़ी वो ये थी कि logarithm is just a way of representation of numbers that has derived its concept from exponents. यहाँ पे if I represent this was my mistake, so I just wanted to rectify it. If I represent a raised to the power x as is equal to n, then log of n raised to the power a will be equal to x. Here n comma a should be greater than 0. n comma a should be greater than 0. a will be greater than 1. greater than 1 के लिए एक अलग टाइप का प्लॉट बनेगा, greater than 0 के लिए एक अलग टाइप का प्लॉट बनेगा. That is a different thing. But a and n should be greater than 0 because x can be negative also. और but obvious सी बात है भाई, x will be negative. अब अपन बात करते हैं, ठीक है. अब अपन अगर प्लॉट की बात करें तो if a is greater than 0, in that case the plot will be like this. If a is less than 0, in that case the plot will be like this. ठीक है. अब अपन बात करते हैं फंडामेंटल लॉज ऑफ लॉगरिथम. कुछ लॉज हैं लॉगरिथम के, उनकी बात करते हैं. देखो, पहला लॉ, और ये लॉ कुछ नहीं है ऐसा कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है ये कि अरे सर कैसे याद होगा, ये होगा वो होगा. याद हो जाएगा, बहुत प्यार से याद होगा, बता रहा हूं. बट वही है, थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ते रहना, आराम से याद होगा. लॉ नंबर 1, log of a to the base a is equal to 1. log of a to the base a is equal to 1. कैसे सर, कैसे आपने बोल दिया? ये बहुत आसान सी चीज है बेटा कि a raised to the power 1 a ही होगा. a raised to the power 1, definitely a raised to the power 1 is equal to a. So log of a to the base a is equal to 1. पहली चीज. दूसरी चीज ये, log of 0 to the base a is not defined. log of 0 to the base a is not defined because कोई ऐसी चीज, कोई ऐसा नंबर पॉसिबल नहीं है that a raised to the power that number is equal to 0. This thing is not possible. पॉसिबल ही नहीं होगा कभी भी. ऐसा a to the power anything equal to 0 होगा ही नहीं. हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ. तो इसीलिए this is not defined. Next is log of any negative. हाँ बोलिए. सर if log of 1 raised to base a है तो फिर सर हमारा आंसर हमेशा 0 ही होगा. हाँ, log of 1 raised to the power base a है तो उसका आंसर 0 ही होगा, क्योंकि a raised to the power 0 is always equal to 1. a raised to the power 0 is always equal to 1. ठीक है, इसलिए log of 1 to the base a is equal to 0. जब हम छोटे थे तो हम पढ़ते थे, मैं जब छोटा था तो मैं सब पढ़ता था, log 1 जहां पे भी है उसको 0 ले लो. तब हमें इतना बेस का कंसेप्ट नहीं बताया जाता था. इनफैक्ट ये टॉपिक पढ़ाया नहीं जाता था यार स्कूल में. पहले टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में हुआ करता था एंड इट यूज्ड टू बी द फर्स्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक. अब तो खैर इसको हटा दिया, दे हैव रिमूव्ड दिस, बट दिस टॉपिक यूज्ड टू बी इन क्लास 9th और पढ़ाते ही नहीं थे. ठीक है. सो log it is not even in the whole CBSE board. It is in 11th standard. This topic is very well present in 11th standard. ठीक है. Log of a negative number is not defined. किसी भी नेगेटिव नंबर का log डिफाइन नहीं होता है. तो हम बात कर रहे थे लॉज की. तो लॉज में अपन ने पढ़ा था log of a negative number is not defined. ठीक. नेक्स्ट लॉ इज log of प्रोडक्ट के लॉ की बात करते हैं. द नेक्स्ट लॉ इज दिस वन, log of mn to the base a. इसको you will write log of m to the base a plus log of
n to the base a. What does it mean? सपोज करो कहीं पे मुझे दिया हुआ है 2 into 3 is equal to 6. Fine. So here I will write log of 6 to the base 10 is equal to log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10. ठीक है, अगर कहीं पे 2 into 3 is equal to 6 दिया हुआ है या कहीं पे मान लो log of 6 to the base 10 दिया हुआ है, so this is also equivalent to log of 2 to the base 10 plus log of 3 to the base 10. कैसे सर, कैसे लिख दिया आपने? मैंने यहां से लिख दिया, इसके एप्लीकेशन से लिख दिया ये. ठीक है, प्रूफ जानने की जरूरत नहीं है, प्रूफ के पचड़े में पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि nobody is going to ask you the proof. People will ask you the application of the theorems. ठीक है, next is log of m divided by n to the base a is equal to log of m to the base a minus log of n to the base a. इसका क्या एप्लीकेशन हो सकता है सर? देखते आओ. मान लो कहीं पे दिया हुआ है 0.0001, यू कैन राइट इट एज, अब कहीं मान लो आपको बोल दिया log of 0.0001 बताओ कितना होगा. सो दिस विल बी नथिंग बट, अब ये इसका लॉग तो आप बता नहीं सकते हो, कैसे बताओगे सर? मुझे तो नहीं आता, लेकिन बाय एप्लीकेशन आप बता सकते हो. कैसे बता सकते हो? आप इसको लिख सकते हो 1/1 followed by 4 zeros. ठीक है, now this will be equal to log of 1 minus of log of 1 minus of log of 10,000. So this will be log 1 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है. 0 minus 4 which is equal to minus 4. ठीक है, तो log of 0.0001 is equal to minus 4. यहां से आप एप्लीकेशन का प्रयोग करके आप लॉज का प्रयोग करके आप इसको निकाल सकते हैं. नेक्स्ट इज log of log of m raised to the power n to the base a. M raised to the power n to the base a. This you can write as n times of log of m to the base a. This you can write as n times of log of m to the base a. क्या एप्लीकेशन इसका सर? देखो इसका एप्लीकेशन ये है log of 10 और यहाँ पे मान लो आ गया 1000. So you can directly write it as log of 10 to the base 10 raised to the power 3, 10 raised to the power 3 to the base 10, which is equal to 3. This is equal to log of 10 raised to the power 3 to the base 10 raised to the power 3 to the base 10, which is equal to log of 3. So this is the application of this thing. देखिए यहाँ तक जो अपन ने लॉज पढ़े, 5-6 लॉज जो अपन ने पढ़े, इन 6 लॉज में किसी को कोई दिक्कत हो तो प्लीज आस्क. Somebody has raised his hand. प्लीज पूछिए क्या दिक्कत है बेटा? सर और एक बार समझा सकते हैं? कौन सा वाला? लास्ट लॉ ही और एग्जांपल के साथ. लास्ट वाले को और एग्जांपल के साथ. ठीक है, अगर मान लो आपको 10 raised to the power 5 लिखना है, ठीक है, आपको log of 10 raised to the power 5 to the base 10 निकालना है. I mean log of 10,000 to the base 10 निकालना है. ठीक, so this you can write as, this 10,000 you can write as 10 raised to the power 4. So here it will be log of 10 raised to the power 4 to the base 10. अब according to this law, this will become 4 times, this will become 4. कैसे आया सर? यहाँ से आया log of m raised to the power n to the base a is equal to n times of log of m raised to the power a. ठीक है, when we will do the questions, then I'll explain more about it. ठीक है, अभी फिलहाल के लिए this is the example. आगे बढ़े. Next law is log of, now this is very important. This is very important. This is the gem of the law. इस इकलौते लॉ पे
आपके 90% क्वेश्चन सॉल्व होंगे। क्या है सर ये लॉ? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज ऑफ बेस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड चेंज ऑफ बेस। कैसे हुआ सर ये चेंज ऑफ बेस? क्या है ये चेंज ऑफ बेस? समझो, अगर मैं बोलूं log ऑफ m रेज टू द पावर a है, ठीक है, तो इसको मैं इस तरीके से लिख दूंगा, log ऑफ m रेज टू द पावर से x डिवाइडेड बाय log ऑफ a to the base x. I can write it as log of m to the base a. I will write it as log of x to the base a divided by log of a to the base x. ठीक है, this is used very much in while solving the questions. For example, कैसे आप इसको यूज करोगे? देखो, for example, कहीं आपको दिया हुआ है find the product, ठीक है, पहला आपको दे दिया log of 3 to the base 2 multiplied by log of 4 to the base 5, okay, and multiplied by say log of 5 to the base 3, ठीक है। अब इसको आपको सॉल्व करना है। नाउ हाउ यू विल सॉल्व? देखो, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम बेस 10 में यूज कर देंगे इसको, ठीक है। सो दिस विल बी log of 3 divided by log of 2. Wait, this will be multiplied by log of 4 divided by log of 5 multiplied by log of 5, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, हाँ, log of 5 डिवाइडेड बाय log of 3। क्या किया मैंने बेटा? मैंने बेस को चेंज कर दिया। सबसे पहले ये log 3 और log 3 मेरा कैंसिल हो जाएगा, उसके बाद ये log 5 और log 5 मेरा कैंसिल हो जाएगा। अब बचा मेरे पास क्या? log 4। अब बचता है मेरे पास log of 4 डिवाइडेड बाय log of 2, log of 2. Now this 4 can be written as 2 raised to the power 2. So log of 4, by using the property that we just studied, I can write log of 4 as equal to 2 times of log of 2. log 2. ठीक, again everything is going in base 10, ठीक है। So this will be 2 times of log 2 divided by log 2. Log 2 से log 2 cancel, you will get 2. This is the beauty of this change of base. Sorry, this change of base. This is the beauty of this change of base. ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज दिस वन। क्या बोलते हैं साहब ये? इनकी भी बात थोड़ी सुन लेते हैं। इफ ही इज ट्राइंग टू से, अगर मेरे पास कहीं इस तरीके का एक्सप्रेशन है, दैट इज log ऑफ 2 रेज टू दी पावर, मान लो अगर मेरे पास कहीं ऐसा है log ऑफ 8 और यहाँ पे है इट इज 729, ठीक है। तो व्हाट आई विल डू हियर, I will write this as log of 2 raised to the power 3, and this I will write as 9 raised to the power 3. ठीक है। Now my expression will simplify and it will become 3/3. ये जो पावर थी 3 की ये इधर आ गई, और ये जो पावर थी 3 की ये इधर आ गई। 3/3 multiplied by log of 9 to the base 2. So 3 से 3 cancel हो गया। So my this expression log of 729 to the base 8 is just equivalent to log of 9 to the base 2. Log of 729 to the base 8 is equivalent to log of 9 to the base 2. कभी कभी इसका यूज आता है। I have not seen much of the practical application of this. So I have देखते हैं अगर कहीं क्वेश्चन में यूज आता है then we will definitely use it. But एक बार वापस समझा सकते हैं? हाँ, एक सेकंड रुको। क्या हुआ? आवाज चली गई क्या? कुछ हुआ क्या? आवाज आ रही है आप लोग को मेरी?
यस सर Sir, सर ये एग्जांपल का आंसर log 9 to the base 2 आएगा ना? हाँ बेटा, log 9 to the base 2 ही आएगा। चलो, ये एग्जांपल आपके फ्रेंड ने बोला दोबारा समझाने के लिए, तो दोबारा समझा देते हैं, इसमें क्या है। I will change this color. I'm not satisfied with this red color. ठीक है, चलो देखो, this thing is basically ये बोलना ये चाहते हैं कि if log of a raised to the power p, I mean log of n raised to the power q to the base a raised to the power p is nothing but q upon p multiplied by log of n to the base a। ये इनका लॉ है, ये इनका लॉ है, और इस लॉ का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन अपन देखते हैं कैसे। सपोज करो मुझे कहीं पे दिया हुआ है कि आई हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ लॉग ऑफ 729 टू द बेस, लेट अस टेक इट 32। इसको मुझे सिंप्लीफाई करना है कहीं पे या कहीं पे, ये मेरे पास आ गया इस तरीके से लिखा हुआ, एंड दिस नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय से log ऑफ 2 टू द बेस 9। अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, अब देखो, अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा। नाउ आई नो सम ऑफ यू हैव गिवन द आंसर, थैंक यू। सो अब मैं देखो, यहाँ पे दो तरीके हैं मेरे पास, या तो मैं इसको चेंज ऑफ बेस से अप्लाई करके कर दूं, या तो मैं इसको डायरेक्टली कर दूं। डायरेक्टली करके देखते हैं कैसे करते हैं। Here, according to this formula that I have learned, I can write it as log of 9 raised to the power 3, and this 32 will be 3 raised to the power 5 multiplied by this 32 will be, I'm sorry, 2 raised to the सर 2 raised to the हाँ power 2 5 raised to the power 5 कर दिया भाई, कर दिया, multiplied by log of 2 to the base 9. So this will be 3 upon 5 multiplied by log of 9 to the base 2, 9 to the base 2, एक मिनट थोड़ा सा इरेज करता हूँ। This will be 3 upon 5 multiplied by log of 9 to the base 2 multiplied by log of 2 to the base 9। अब ये चीज तो मेरा कैंसिल होके 1 हो जाएगा, because I know this is just this one, so my final answer will be 3 upon 5। My final answer will be 3 upon 5, जो कि आप में से कई लोगों ने दिया भी शायद मेरे को आंसर। 5 upon 3 और 3 upon 5। सर वो पहले p अपॉन क्यू आएगा ना, आपने q अपॉन p लिखा है सर। कहाँ आंसर पे? 5/3 आएगा। एक मिनट 5 बाय में p अपॉन q आएगा ना। अच्छा, ठीक है। ओके फाइन। लेट अस चेक कर लेते हैं ना कि ये कैसे आया, देख लो और देख लेते हैं कि आया कैसे। देखो यहाँ पे ये लिखा हुआ है log of n raised to the power q and this is log of a raised to the power p। तो इसको I can write as q times of log of n and इसको I can write as p times of log of a। So p upon q आएगा कि q upon p आएगा भाई? मुझे तो लग रहा है कि q upon p आना चाहिए। सर यहाँ पे तो p/q लिखा है। नहीं सर p अपन q ही आएगा। कैसे बेटा बताओ कैसे? सर वो आपने बोलो सर वो आपने वो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं। So this was all about the laws of this logarithm. Now what we will do is we will be doing some questions. अब हम questions करेंगे, जिन questions को करने के लिए आपके पास 2-3 मिनट है सारे questions को करने के लिए। सवाल नंबर 1 आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे ये है। Now we will be playing कौन बनेगा करोड़पति। चलो सर कर लिया।
कर लिया, हाँ आंसर आ गया मेरे पास। मुझे इसमें सर हो चलो गया। एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को करके बता देता हूँ। हमें इसमें ये बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। देखो नॉट करेक्ट वर्ड है, ध्यान रखना इस बात को। log 10 to the base 10 is 1, ये तो होता ही है बिकॉज आ 10 गया। raised to the power 1 is equal to 10, तो ये स्टेटमेंट सही है। log 5 2 plus 3 क्या होता है? log 5 is equal to log 6, क्या ऐसा होता है? नहीं होता। नहीं सर रॉन्ग। नहीं सर वही गलत है सर। वही गलत है, है। होता है वही है, log 1 plus log through है। वही log है, 10 गलत है, वही है, गलत base है। 10 1 equal to 0। निकल लो, वही है, गलत है, ये गलत है, निकल लो। आगे अगला देख लेते हैं। 3 plus 2 plus 3 is 5, 5 plus 1 is 6। बेटा कोई ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अच्छा चलो बताओ मेरे को, इज ऑप्शन नंबर डी करेक्ट और रॉन्ग? somebody has said कि option number D is also wrong. Option number D is correct or wrong? Tell me. Sir, it is correct. Sir, it should be सर multiplication. करेक्ट है। कोई बोल रहा है करेक्ट, कोई बोल रहा है इनकरेक्ट। चलो देखते हैं, और लोग बोलो क्या होगा, करेक्ट होगा कि इनकरेक्ट होगा? सर करेक्ट ही है क्योंकि वो तो log 6 हो ही गया और राइट साइड वाले में मल्टीप्लाई करके करेंगे तो एग्जैक्टली log 6 है। एग्जैक्टली राइट साइड वाले में मल्टीप्लाई करोगे तो बेटा 0 आएगा। राइट साइड वाले में सबसे पहले आप इस log 1 को 0 करोगे। अब आप इस log 2 सर प्लस यहाँ log पे भी log 6 आ जाएगा, वहाँ पे भी log 6 ही आएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू log 6, राइट हैंड साइड क्या होगा देखते हैं। log 1 को के होने ना होने का तो कोई मतलब ही नहीं, इट इज 0। सो दिस इज बेसिकली log of 2 plus log of 3, so this will be log of 6, log 2 into 3। log Yes, 2 sir. into 3 which is equal to log 6. So statement number D is also correct. Next question. Wait, हाँ चलो next question. I'm sorry. चलो ये वाला क्वेश्चन। log 2 की वैल्यू दी हुई है, log 3 की वैल्यू दी हुई है। अब आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इंटरेस्टिंग। अब क्या करेंगे भाई? वेरी गुड, आंसर भी आ गया। किसी का आंसर आया सी, किसी का आंसर आया बी, मे बी सी। व्हाट इज दिस मे बी? Okay, tell me how you are solving this question. Come on. Come on, tell me how you will solve this question. फिर उसके बाद
आगे कैसे सॉल्व करेंगे? Okay, Rajdeep, you tell me how you are solving this, how you solve this question. Rajdeep, please tell me how you solve this question. I guess his mic is not working. And लेकिन log 5 की तो आपको वैल्यू ही नहीं दी हुई है, तो आपने log 5 की वैल्यू निकाल कैसे ली? You are only log 5 को हम लोग log 10 divided by 2 करके लिख सकते हैं. Okay, log 5 को आपने लिख दिया log of 10 divided by 2, that is log of सर फिर 10. log 10 minus log 2 करके लिख सकते हैं. इसको आपने ऐसे लिख दिया. Fine, fine, agreed. But can there be a better method of solving this? Because there has to be one more method. क्योंकि अगर आपको log 3 की वैल्यू दी हुई है और फिर आपके पास क्या आएगा पता है? आपके पास आएगा 9 into 0.3010 divided by 1 minus 0.3010. इस चीज का कोई मतलब नहीं बनता है अगर आपको यहाँ पे डिवाइड करना पड़ेगा. No, you are not supposed to see the value of log 5. Come on. ये 0.7 आपने ले लिया, फिर आप अच्छा ठीक है, वो तो आपको यहाँ से मिल गया, ठीक है. उसके बाद फिर आप इसको डिवाइड, फिर आप कैसे डिवाइड करोगे? वही तो प्रॉब्लम है ना. यही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप इसको डिवाइड कैसे करोगे भाई. ट्राई करो. Sir, can we do it like we know that log 10 is equal to 1, sir, and log 100 is equal to 2, sir. क्या So क्या we can do it like sir, log 10 log is 1 by 10 is equal to minus 1, log 1 by 1000 is equal to minus 2. फिर Sir, then we can write it as sir log under root 10 into something 1 by 2. Sir, may I calculate it? करो. Actually, unfortunately, even I also tried a lot that can we have a better method of doing this? Can we have a better method of doing this? But even we also, even I didn't find any other better method of doing this. See, 512 में तो कोई problem नहीं है. 512 is basically 2 raised to the power 9. So your numerator will become, आप सबसे पहले इस log of 5 to the base 512 को log of 512 to the base 10 और divided by log of 5 to the base 10 के रूप में आप convert करके लिख दीजिए. ठीक है. Now what you can do is, बात यहाँ पे वही रहेगी, कान ऐसे पकड़ो या वैसे पकड़ो, बात यहाँ पे वही रहेगी. डिवाइड तो आपको करना ही पड़ेगा. Now this you know, then your numerator will be That 9. method is not working. Huh? What is not working? That method is not working. Sir, it is going to the same way. It is going to the same way. This will be 9 into 0.3010 and log of 10 to the base 5 is basically, आप इसको 5 into 2 divided by 2 कर सकते हो. So it will be log of 10 to the base 10 minus log of 2. Now this is 1 and this is 0.3010. So it will be same. वो आपको divide करना ही पड़ेगा. And the correct, वही आ रहा है वापस. हाँ वो वही आ रहा है, वो घूम फिर के वही आ रहा है. The correct answer of this question is this one. Next question. ये वाला question करो. This is an interesting question.
आंसर आया? C is 1/2. फाइन, वेरी इजी क्वेश्चन. देखो log of √8 को आप लिख सकते हो log of 8 raised to the power 1/2, and this is divided by log of 8. और this log of 8 raised to the power 1/2 को you can write half times of log of 8 divided by log of 8. ये दोनों हो गया cancel. So your answer is 1/2. सर 1/2. Yeah, your answer is 1/2. चलो नेक्स्ट. अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे. आई, चलो बताओ. आप लोग कैलकुलेटर यूज कर रहे हो? कर रहे हो तो कर सकते हो, कर रहे हो तो कर सकते हो. I just want to know, I just want to know the approach कैसे किया. बताओ कैसे किया बेटा. सर हमने पहले log 27 को log 3 क्यूब लिख दिया इज इक्वल टू 1.431 और फिर उसके बाद हम लोग प्रॉपर्टी लगाई तो 3 log 3 इज इक्वल टू 1.431. तो Very सर good. log 3 इज इक्वल टू 0.477. So हम्म, then log 9 is equal to log 3 square. So 2 log 3 is equal to 2 into 0.477. So is equal to 0.954. very good. In fact, I can reduce your step little bit. थोड़ा सा स्टेप आपका मैं कम कर सकता हूँ बेटा. It won't be 2.8. You have done some mistake. I can reduce your step little bit. देखो log 27 is 1.431. So यहाँ से आपको मिला था log 3 is equal to 1/3 times of, just a minute, huh? Log 3 is equal to 1/3 times of 1.431. There is no need to solve this. There is no need to solve this. Log 9 is 3 times of log 3. I mean 2 times of log 3. I beg your pardon. Log 9 is 2 times of log 3. So, and log 3 is 1/3 into 1.431. So log 9 will be equal to 2/3 into 1.431. ऐसे कर लो या वैसे कर लो, your answer will be the same. ठीक है. अब इस तरीके से इसको कर. हाँ बोलिए सर 2.8 ही होगा. कैसे बेटा? सर नहीं, फिर डिवाइड बाय 3 किया तो यही आएगा बेटा. 2 को 1.431 से मल्टीप्लाई करोगे और उसके बाद जब 3 से डिवाइड करोगे तो 2.8 कैसे आ जाएगा? क्या बात कर रहे हो यार? सर नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता. एक मिनट लेट मी टॉक टू यू. 2 को आप 1.431 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, फिर आप इसको 3 से डिवाइड कर रहे हो और देन यू आर सीइंग दैट इज आंसर विल बी 2.8. ऐसी बातें मत कर भाई. 2 को जब 1.4 से मल्टीप्लाई किया इन दैट केस आल्सो आप नहीं 2.1 आंसर सर. सर मैं 2 into 1.431 का वैल्यू बोल रहा था. तो इसको 3 से भी तो डिवाइड करोगे ना बेटा. हाँ सर, वो मैं मेथड बता रहा. ओके फाइन, ठीक है. मुझे लगा कि आप ये कैलकुलेशन मिस्टेक कर. चलो आगे चलो. नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन. अब देखते हैं इस क्वेश्चन का आंसर कौन देता है. सर ये log a to the base b है या a divided by b? A divided by B है.
ए डिवाइडेड बाय बी है यार, इस तरीके से क्यों कंफ्यूज हो रहा है भाई? सर a plus b is equal to 1. ओके सर ए ऑप्शन आएगा। हाँ सर हो गया। सर ए ऑप्शन आएगा, सर ऑप्शन ए, बिकॉज दिस विल बी log a minus log b plus log b minus log a सर सब कैंसिल हो जाएगा। is equal to log of a plus b. Now left hand side is 0 is equal to log of a plus b, that will give me a plus b is equal to 1. पर इसकी जगह log mn करके भी इसकी जगह log a by b plus log b by a को हम ऐसे लिख सकते हैं log a by b into b by a, तो ये सब कैंसिल हो गया ना। हाँ सर वही सर कर सकते हो, वो भी इसका आंसर 0 आ गया। कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। आंसर आना चाहिए, कैसे आए वो ठीक है। अब इसका बताओ। मैं ये क्वेश्चंस देखता, अरे यार रिकॉर्डिंग नहीं आ रही क्या? मैं ये क्वेश्चंस देखता नहीं हूँ, डायरेक्ट कॉपी कर देता हूँ फ्रॉम विच एवर सोर्स आई गेट। तो अगर कभी एरर हो जाती है तो इवन आई डोंट हैव एनी आइडिया कि एरर आई कहाँ से, तो मैं डायरेक्ट कॉपी करके इसको छोड़ देता हूँ, फिर मैं क्लास के टाइम पे डायरेक्ट। अब नाउ आई एम सीइंग दिस क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट टाइम। यस बोलिए। सी ओके, सर सी। सी ओके, सबकी पिटाई लगेगी आज। सी तो बेटा किसी केस में नहीं आ सकता। सी कैन नेवर बी द आंसर। चलो, ओहो somebody saying D also। देखो भाई, log of 7 to the base, अरे यार क्या है ये, that's why I don't want to use डी होगा डी। log of 7 to the base 10 is equal to a, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। log of 10 to the base 1 upon 70 की आपको वैल्यू निकालनी है। so what you will write it as log of 10 to the base 1 minus log of 70 to the base 10, ऐसा लिख सकते हैं? बोलो यस और नो। कोई गलत काम नहीं किया मैंने। yes, मैंने सिंपली आइडेंटिटी लगाई है। नाउ दिस क्वांटिटी इज 0। सर अब एक बार ये फिर से समझाओ। log of 1 upon 70 to the base 10 को मैंने इस तरीके से लिखा, log of 1 to the base 10 minus log of 70 to the base 10। ठीक है, नाउ दिस क्वांटिटी इज 0। ऐसा मैंने क्यों लिखा? ऐसा मैंने डिवीजन वाले लॉ का यूज करके लिखा। नाउ दिस ऐसे भी लिख सकते थे कि 1/70 equal to 70 to the power minus 1। एक मिनट बेटा, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। उस तरीके से भी करेंगे, एक बार इसको कर लेने दो। सो दिस विल बिकम 0 हियर। नाउ माय फाइनल थिंग इज log of 70 to the base 10। अब इस 70 को आई कैन राइट एज 7 into 10, और माइनस साइन तो था यहाँ पे, माइनस ऑफ log of 70 to the base 10। now this will be equal to minus of log of 7 plus log of 10 to the base 10। so माइनस साइन तो माइनस साइन ही हो रहेगा, माइनस ऑफ log of 10 to the base 10 is 1 and this is a, so minus of 1 plus a। so this will be finally equal to minus of 1 plus a। this was method number 1 of solving this question। method number 2 is, ये हो गया, ये सबको समझ में आ गया? ठीक है। नाउ अरे एक इसका वीडियो चालू हो गया। ठीक है, चलो देखो। Now method number 2 of solving this question was
पहले सारे क्वेश्चंस इनको दिखा देता हूँ मैं, है ना, उसके बाद मैं मेथड नंबर 2 पे आऊंगा। क्या है यार, कभी कभी सिस्टम ऐसा बिहेव करने लगता है। अब देखो, मेथड नंबर 2 ऑफ सॉल्विंग दिस क्वेश्चन वाज, सेवेंटी को I will write as log of 10 and this will be 70 to the power minus 1. So this will be minus of log of 70 to the base 10. अब वापस से यहाँ से वही काम करो, minus log of 10 and this is 7 into 10. सर हमें पता चल गया कि नेगेटिव है सर, अब तो हम डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ऑप्शन ए होगा कि सर हाँ, पॉजिटिव नंबर का लॉग तो yes, पॉजिटिव ही होगा। yes, आप यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हो, you can see the options, you can utilize the options and you can move. ये भी आप कर सकते हो, डेफिनेटली आप कर सकते हो, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस वन, चलो सॉल्व इट। This question is nothing but log of 2 to the base 10 is equal to log of 10 to the base is equal to 1 upon log of 10 to the base 2. तो जो आपको required है आप उसका 1 upon कर दीजिए, तो this will be 1 upon 0.3010. So this will be 10,000 upon 301. So this option will be your correct answer. This option will be your correct answer. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन। वो 1000 होगा ना, 10,000? हाँ, वो 1000 होगा। वो एक्चुअली इट वाज, ये यहाँ से इट वाज बेसिकली ये 1000 upon 30, ये 10,000 upon 3010 हो गया, so that becomes 1000 upon 301. I'm more concerned about finishing the 3 questions that I have. ठीक है, चलो अब ये करो। See, 80 is 2 raised to the power 3 into 10. Now I can very easily solve log of 80 to the base 10 is equal to log of 10 into 2 raised to the power 3 into 10. So this will be 3 times of log of 2 plus log of 10 to the base 10. So it will be log of 10 to the base 10 तो 1 होता है, 1 plus 3 into 0.3010. So it will be 1 plus 0.903, which is equal to 1.903. देख लें किस आप लोगों ने क्या क्या आंसर दिए हैं। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, फाइन। मोस्ट ऑफ यू हैव गिवन द आंसर करेक्ट, इट विल बी 1.903. चलो नेक्स्ट। आपको आंसर सेंड किया, देखा मैंने। I don't have the correct answer, so we have to solve this question. I'm just waiting for 2 minutes. और लोग कर दें, फिर we'll start. Now these type of questions are really very interesting. इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इंटरेस्टिंग होते हैं, रियली। इस टाइप के क्वेश्चंस को करके
You will really enjoy the question. देख क्या करेंगे अपन, most of you are giving the answer even I don't know whether the answer is correct or not. What we will do is, first of all left hand side की बात करते हैं. Here I am having, I can see it is written in the form of log a plus log b, so it will be equal to log of a plus b, that is 5 into 5x plus 1. पहली चीज. Now here this 1 I can write as log of 10. So here it will be log of 10x plus 5 to the base 10 plus log of 10 to the base 10. So now I can write log of 10 to the base 5 into 5x plus 1 is equal to log of 10 to the base log of 10 into x plus 5 to the base 10. ठीक है, अब दोनों चीजें log 10 के बेस में है, इसलिए दोनों चीजों को इक्वेट कर दो. So what I will get, 5 into 5x plus 1 is equal to 10 into x plus 5. इससे ये कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया. So I will get 2x plus 10 is equal to 5x plus 1. So from here I will get 3x is equal to 9 और x equal to 3. x equal to 3 और option number B will be your correct answer. सर ये समझ में नहीं आया, वापस समझा सकते हो? हाँ, क्यों नहीं समझा सकते. चलो देखो, फिर से देख लो. फिर से देखो क्या किया मैंने. सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे ये नंबर है, ये यहाँ पे इन दोनों लॉग्स के बीच में. इस क्वेश्चन का पहले आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है. दिस क्वेश्चन विल बी योर होमवर्क. चलो कोई बात नहीं, वी विल डिस्कस दिस आल्सो. इस क्वेश्चन में क्या किया अपन ने, यहाँ पे log 10 की log 10 प्लस log 10 मतलब दो क्वांटिटीज लॉग की हैं जो कि एडिशन में है. सो माय LHS विल बी इक्वल टू log ऑफ 10 मल्टीप्लाइड बाय 5 into 5x plus 1. यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको. नाउ माय RHS विल बी इक्वल टू this 1 I can write as log of 10 to the base 10. लिख सकता हूं मैं ऐसे 1 को. Now my RHS will be equal to log of x plus 5 to the base 10 plus log of 10 to the base 10. ठीक है. अब my expression will finally become log of 10 5 into 5. इसको अभी फिलहाल इतना ही छोड़ देते हैं. 5 into 5x plus 1 will be equal to log of 10 and this will be 10 into x plus 5. अब चूंकि दो क्वांटिटीज लॉग की, अगर दो क्वांटिटीज इक्वल होती हैं तो वो दोनों क्वांटिटीज भी इक्वल होती हैं. लॉग ऑफ a, if log of a is equal to log of b, that means a is equal to b. So what I will do here, now I will equate the two quantities. So I will have 5 into 5x plus 1 is equal to 10 into x plus 5. 5 into 5x plus 1 is equal to 10 into x plus 5. सबसे पहले ये इससे कैंसिल हो गया, ये 2 हो गया. So I will have 5x plus 1 is equal to 2x plus 10. Solving, I will get x is equal to 3. Yes sir. ठीक है. This is how we were about to solve this question. Next question and the last question of the day. I got its answer. आप लोगों को मिल गया आंसर? मुझे तो पता चल गया.
Okay, getting the answers. Oh, wow, good. देखो, चलो आंसर आ गया है तो I will just explain the question. I'll just explain the question. Many of you have given the answer. Very good, very good. You guys are doing good. So यहाँ पे भाई ऐसा कुछ ना करें. Just a minute. पता नहीं क्या होगा. Sorry. When the system sometimes go mad. बेटा ऐसा कुछ ना करें कि यहाँ पे इसका एलसीएम लेने का प्रयास करें, वो सुसाइडल हो सकता है। यहाँ पे बस एक काम करना है, यहाँ पे बस इस क्वेश्चन में एक काम करना था बेटा, चेंज ऑफ बेस लगाना था। दैट इज व्हाई आई सेड दैट चेंज ऑफ बेस थ्योरम, दैट चेंज ऑफ बेस एप्लीकेशन इज द ब्रह्मास्त्र ऑफ दिस फील्ड। क्या करेंगे यहाँ पे? चेंज ऑफ बेस लगाएंगे। दिस आई विल राइट एज log of 60 to the base 10 divided by log of 3. This I will write as 1 upon log of 60 upon log of 4. This I will write as 1 upon log of 60 upon log of 5. Now what I will do? इसको ऊपर भेज देते हैं। So this will be, थोड़ा सा इरेज कर दूं क्योंकि मैं थोड़ा मेरी वो हैंडराइटिंग थोड़ी ज्यादा बड़ी हो गई है। सो दिस विल बी log of 3 upon log of 60 plus log of 4 upon log of 60 plus log of 1 आ जाएगा 5 upon log of 60। log of 60 तो नीचे है, ऊपर वाले टर्म्स को ऐड कर दीजिए। log of 60 multiplied by log of 3 plus log of 4 plus log of 5. So this is equal to log of 60 divided by log of 60, log of 60, which is equal to 1. 1. Which is equal to 1. Yes. So this is how we calculate the questions on logarithm. भाई क्लास तो खत्म हो